This is chapter number 7, triangle. Now this chapter is different from the previous chapters of triangle. In primary up to 8th standard, you have studied about triangle. But in that we had mainly the sums. Here we have certain example sums, but besides sums we will have certain derivations. In maths, derivation are known as riders. जैसे साइंस में हमने डेरिवेशंस किए ना, डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव करी, इसी तरह मैथ्स में डेरिवेशंस और यू कैन से सम prove that sums. So these prove that sums are called riders. So when I use general word riders, that means prove that sums. But with prove that sums riders, we have certain theorems also. Theorem, a statement which is proved by logical argument, but the difference between them is what? Generally, theorems will be given in book. Theorem is also a conditional statement, if or then वाला होगा, हमें उसे prove करना है. Rider भी उसके जैसा है, but theorem जो है वो book में दिए होंगे. These are the methods. Related to that theorem, we have certain riders. Riders are correct for that particular condition. वो पर्टिकुलर सम के लिए ही करेक्ट है. थ्योरम अगर एक डिराइव किया तो उसके जैसे सभी के लिए राइट होगा, है ना. सो थ्योरम इज जनरल वर्ड और स्पेसिफिक वर्ड जो है वो राइडर्स है. अब राइडर्स जो है प्रूव दैट सम्स हम करेंगे तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस आएगी वो मैं बताऊंगा. बट इससे पहले हम और एक बार देख लेते हैं ट्रायंगल इंफॉर्मेशन. Planar figure lies in a plane made up of 3 line segments. ABC is the triangle. So first segment is AB, second BC, third AC. These are the 3 segments. When these 3 segments are joined end to end, we get a closed figure which is called triangle. In triangle ABC, A, B and C, these are called vertices. Plural is vertices. एक है उसके लिए वर्ड है वर्टेक्स. मतलब ट्रायंगल में एंड पे 3 पॉइंट है. एक ये एंड पे, सेकंड इज हियर, थर्ड इज हियर. सो वर्टाइसेस और वर्टेक्स आर A, B and C. A, B और C ये जो 3 पॉइंट है उसे कहेंगे हम vertices या तो vertex. AB is first side, BC is second side, and AC is third side. So AB, BC, AC are the 3 sides, and with 3 sides we have 3 angles: angle A, angle B, and angle C. Angle A, angle B, and angle C are the 3 angles. Now remember, if it is triangle, one triangle has 6 different names. समझ लेना बेसिक्स. सम्स मजेदार है, करने में मजा आएगी. राइडर्स कुछ नया लगेगा कि आप कुछ सीखे. A triangle has 6 names. एक ही ट्रायंगल 6 नेम है ना. बढ़िया है ना. इंसान है तो ज्यादा से ज्यादा 2 नेम होते हैं. बाहर का कुछ नेम होगा, घर में पप्पू, पिंटू, टिंकू, मोनू, गोलू ऐसे नाम होते हैं, है ना. बट ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल 6 नेम्स. कैसे? फॉर एग्जांपल, we begin from A, will go in this direction. Now first name is triangle ABC. Second we will begin with B, so triangle BCA. Third we begin with C, so triangle CAB. Got it? So in this direction we have 3 names. They are triangle ABC, BCA, CAB. Similarly, we'll move in this direction. अब ये डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पे. So again we have ACB, CBA and BAC.
So 3 name in this, 3 name this side. So total 6 names. Got it? One triangle can be denoted by 6 different ways. Similarly, we have symbol triangle, but as per this CBSE format, अब आप triangle symbol नहीं लिखे और ये लिखे triangle ABC तो भी चलेगा, राइट? ज्यादातर सम्स में ऐसे ही किया, ट्रायंगल ABC लिखा. Sides are like AB. So AB is the line segment. But now we will not write AB segment. We will write it as segment AB. ये लिखेंगे. Angle है angle A, but angle A we will write as angle A. है ना? ये नए फॉर्मेट के हिसाब से, मेरे हिसाब से लिखने में ही मजा आता है. यहाँ तो क्या पूरा सेगमेंट स्पेलिंग लिखना पड़ेगा. ए बी के ऊपर लाइन कर दी, मतलब हो गया. ये शॉर्ट हैंड था, अभी ये बड़ा हो गया. देखो ट्रायंगल पूरा लिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी, बट नो प्रॉब्लम. एंगल ए यू कैन डिनोट एंगल ए, ये भी चल जाएगा. ओके, सो कम टू द पॉइंट. अगेन ट्रायंगल हैज 6 नेम्स, 3 from this side, 3 from this side. Similarly, each segment AB or BA, BC or CB, AC or CA. One angle has 3 names. 3 names as, suppose it is angle A. We begin from this, so we can also say it is angle BAC. कोई बोलेगा नहीं मुझे यहां से शुरू करना है, तो तीसरा बना एंगल CAB, है ना? तो ये बना एंगल A, एंगल BAC, एंगल CAB. These are the 3 names. ठीक है, याद रखना है बेसिक्स. क्यों हम बार बार ये यूज करेंगे, आपको लगेगा रे याद બધું ખબર જ છે ને यार, सर कहीं नવું નથી सिखवाड़ता, बट हो जाती है गड़बड़, इसलिए कई बार नोटेशंस में. सो रिमेंबर नेम ऑफ द ट्रायंगल, नेम ऑफ द साइड, नेम ऑफ द एंगल. Our chapter is about mainly congruence. Congruence is a relation. Congruence का नॉर्मल लैंग्वेज में मीनिंग है इक्वल. दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, दैट इज कॉल्ड congruence. Congruence is a relation. Triangles to congruent triangle. Congruent triangle. Congruent triangle इसका मतलब हुआ equal triangle. ठीक है, congruence and congruent. Congruent means 2 triangles are equal. Congruence is the relation. For example, we have a triangle ABC. Second is triangle PQR. Now, congruence means both are exactly equal. So, if 2 triangles are equal, angle A and P are equal, B and Q are equal, C and R are equal, दोनों equal हो जाएंगे. Suppose ABC triangle है, A और B equal है, R और B equal है, तो ये भी means what? If 2 triangles are congruent, if we cut one triangle, if we draw it on a कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, काट लिया उसको, सेकंड को भी PQR को काट लिया और एक के ऊपर एक रखेंगे ना, तो एग्जैक्ट बाउंड्री टू बाउंड्री, लेवल टू लेवल मैच हो जाएगा. दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है ना, कॉन्ग्रुएंट है ना, एक के ऊपर एक रखा है, ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट. बताओ छो भी ने नमीन ना छो, अच्छा हम नमीन जो है से बताओ छो, आगे दिखता है
क्लास 9 मैथ्स, क्लास 10 है ना? क्यों? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे तो एग्जैक्टली दे आर सेम, देखो है ना, दोनों साइज पे, मतलब कहीं भी काट के उसके ऊपर रखेंगे तो दे फॉर्म द सेम इंप्रेशन, सेम बाउंड्री, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। दैट इज इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कॉल इट इक्वल। याद रखना, प्राइमरी में आया है रिलेशन कॉन्ग्रुएंस, SAS, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, बट ये नए नए है ना वर्ड, बहुत हैवी लगते हैं, सुन के लगेगा अरे बाप रे क्यों वर्ड आया, बट रिमेंबर, इसलिए मैं बता रहा हूं सिंपल। कॉन्ग्रुएंस मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे इक्वल, मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कॉल इट कॉन्ग्रुएंस, है ना, तो रिलेशन को कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। बट अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, टी आएगा। गॉट इट? ओके, अब ये जो फिगर ड्रॉ करी है ABC और PQR, देख के ही पता है दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों? ABC के कंपेयर में PQR तो काफी छोटा है, देखो ABC रख दिया मैंने, है ना? ओ वेद ए जो ना भाई जादू થઈ ગયો, જોતો જ નથી તું तो यहां पे ट्रायंगल उठा के मैंने यहां रख दिया, देखो तो क्या हुआ, PQR के देखो ये बाउंड्री बार है ना, ठीक है, ये ट्रायंगल आ गया, ओरिजिनल जो था वो था ABC, मींस एक के ऊपर एक रखा, these two triangles are not congruent. Remember, there are different types of triangle. Types of triangle based on angle. Based on angle, we have acute angles. Second is obtuse angle, and third is right angle. So these are three triangles based on angle. Based on their sides. साइड्स के हिसाब से हमारे पास अगेन तीन ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड सपोज इक्वल है दो ट्रायंगल की, और सभी तीनों साइड इक्वल है, तो वी कॉल इट इक्विलेटरल, टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस, तीनों साइड डिफरेंट, स्केलेट। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं लिखाता हूं पहले, चलो ओपन योर नोटबुक, बेसिक्स जो है लिख लो, लिखने में ही मजा है, नहीं तो हमारा वेद तो बाजू मत जो है करे थे, वेद घर में सब मस्ती टाइम नहीं बैठो नहीं, ऐसा नहीं है ना? हाँ, उस दिन अपना वो राजदीप गाड़ी में निकला था घूमने मोबाइल लेके, ऐसा थोड़ी पढ़, टेस्ट मोबाइल में पढ़ने नहीं, टेस्ट है ना, ऐसा सिंसियर कहना चाहिए उसे कि गाड़ी में निकला तो भी टेस्ट देने के लिए वो रेडी था। Okay, write down chapter number 7, triangle. Definitions लिखो, चलो पहले definition write down definition. A plane figure formed by three lines intersection of three lines in a plane. A plane figure formed by intersection of three lines in a plane is called triangle.
This is one definition. Another definition, देखो. Second definition is this. A, B, C are three non-collinear points. Line segment AB, BC, CA intersect each other at their end point. Then union of these three line segments AB, BC and AC is called triangle ABC. और करके लिखो और let A, B, C are three non-collinear points. ABC, the three non-collinear points which form segment AB, BC, CA, which form segment AB, line segment AB, BC, CA. Full stop. If these three line segments intersect each other, these three line segments intersect each other at their endpoints. Then the closed figure formed by their union, is called triangle ABC. Triangle draw karo. Below the triangle you write this segment AB union BC union AC. Right, next line. A triangle has six elements. They are three sides and three angles. Right, next line. A triangle can be denoted by six different names. Next line. There are six types of triangles.
make two parts like this based on angle. Based on sides. Types of triangles based on angles, based on sides. Acute angle less than 90 degree. Obtuse angle more than 90, right angle equal to 90. Acute angle, right? Triangle whose angles are less than 90 degree. Obtuse means more than 90, right is equal to 90. डिटेल में नहीं जाएंगे, एक ही एंगल 90 है, but you know this sides. Based on sides, equilateral. Equilateral. All sides equal. Isosceles. Equilateral, all sides equal. Isosceles, two sides equal. Scalene, all sides are different. Right now, next, congruent figures. Right now, figures having same shape and same size. Same shape and same size are called congruent figures. Okay, now pay attention. Suppose this is one figure, irregular shape. If I draw another figure exactly on it, दूसरे उसके ऊपर ही बना दूं, मतलब मैंने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड से मैंने दो इस तरह के शेप कट किए, एक के ऊपर एक रख दिए, है ना? तो ऊपर से देखेंगे तो एक ही दिखेगी. अभी हमने जादू किया, आगे मैंने बुक दिखाई 9th की, पीछे थी 10th की, सेम साइज, सेम शेप. Got it? So objects or figures having same shape, same size are congruent, मतलब equal. Got it? Like 9th की बुक और 10th की बुक. इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर सेम शेप वाले ट्रायंगल कट किए हैं एग्जैक्टली एक के ऊपर है तो वो बन जाएंगे इक्वल.
But the problem arises, we have total 6 types of triangle. ट्रायंगल बता दिया, बट ट्रायंगल के सीधा शेप नहीं होगा. ट्रायंगल में भी 6 तरह है, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल, है ना. तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन. So 6 types of triangles, and that's why it is necessary to get certain conditions. दो ट्रायंगल इक्वल करने के लिए हमें कंडीशंस चाहिए. So चैप्टर में जो है मेनली we will study conditions of congruence. दो ट्रायंगल तो दे दी, बट इक्वल हो गए कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, उसके रिलेटेड जो कंडीशन है वो हम बनाएंगे. We will decide, and based on condition we'll decide whether they are congruent or not. Right? So निकाल देता हूं ये. Once again, congruent figure, two figures or two objects having same shape but different size are congruent. Now write down, एक लाइन में लिखो, next line. There are 6 types of triangles, and hence it is necessary to have their congruence rule. कुछ रूल के हिसाब से वो इक्वल है कि नहीं वो हो जाएंगे. वृषाली शायद आज ही आई है ना, बहुत लंबी छुट्टी हो गई मैरिज में. ठीक है, आज ही आई ना वृषाली. ओके, गुड, वेरी गुड. आज ही शुरू किया है नया टॉपिक. ओके, सो वी हैव नाउ सर्टेन कंडीशंस. Write down. We have SAS congruence rule. याद रखना कंडीशंस, नाम से वैसे एक याद है, सभी हो जाएगा. Write down. Two triangles are congruent. Two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle, two sides and included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle. Now remember, two triangles are congruent. This is first triangle, second triangle. Now two triangles are congruent. इनको कहेंगे congruent. Suppose this is triangle ABC. Second triangle is DEF. अब हमें दो ट्रायंगल इक्वल है तो सभी एंगल और साइड चेक करने की जरूरत नहीं है. What we will do, if two sides and included angle are equal, triangles are equal. Means दोनों ट्रायंगल में सब नहीं चेक करेंगे, कोई भी दो साइड ले लेंगे. फॉर एग्जांपल AB is the first side,
या फिर फर्स्ट साइड है डी, सेकंड साइड इज फॉर एग्जांपल AC, second side is for example DF. So these are the two sides. And included angle, included means दो साइड के बीच में जो एंगल है वो, got it? So for the relation between two triangles, no need to check all sides, all angle. Suppose हमें तीन ही पार्ट मिल जाए, दो साइड और एक एंगल, तो हम कहेंगे दो ट्रायंगल इक्वल है, got it? So here it is triangle ABC, this is triangle DEF. As per SAS condition, what we can say? First is segment AB is equal to this side, it is DE. Two sides are equal. Second side name is AC. So we can say AC is equal to this side BF. So two sides equal. Besides this, उनके बीच में जो एंगल है वो, यहाँ पे एंगल A, वहां पे है D, तो we can say angle A is equal to angle D. If they are equal, two triangles are equal. Means इतना हो गया तो हम कह सकते हैं एंगल A and D are equal. So angle B and E are equal. Left side पे यहाँ नीचे B है, left side is E. This side angle C, so angle F. Three angles are equal. First side AB, first side DE. Base, base को हम कहेंगे second side. So BC और EF be equal, AC और DF be equal. ठीक है? So we have to do only this. फिगर ड्रॉ करो, चलो. ये रहा गन, finished. See, this is called SAS condition. Remember, SAS condition is two sides और बीच में है एंगल. So whenever you are using SAS, दो साइड के बीच में ही एंगल हो. For example, this is one side AB. Here first side is DE. Second side here is AC. Second side is BF. तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो ये रहा, है ना? This is the angle between them. Suppose आप यहाँ का एंगल लो तो वो पॉसिबल नहीं है. In that case it is not SAS. Two sides included angle, they should be equal. Okay. So here what we can say, based on this, अगर इतना इक्वल है हम कहेंगे दो ट्रायंगल इक्वल है. That means we can say, write down, therefore triangle ABC congruent triangle.
ABC congruent DEF. This is a symbol of congruence. See another example. एक दो examples देख लो. Suppose we have this is triangle XYZ. This is triangle PQR. समझ लेना, हाँ, ये बेसिक्स चल रहे हैं, आगे बहुत कुछ काम का है. We will use this only. Suppose it is given YZ is equal to PQ. Two sides are equal. This side and this side are equal. अब we want to use SAS. दो साइड है. Now angle is included. तो एंगल कौन सा होना चाहिए? YZ फर्स्ट साइड और XZ दूसरी साइड. तो दोनों के बीच में जो बना एंगल, तो दोनों के बीच में बना ये एंगल है ना. सेम वे PQ एक साइड है, QR दूसरी साइड, उनके बीच में बना ये एंगल. If these are equal, two triangles are congruent. So condition क्या लिखेंगे हम? See, first is YZ is equal to QP, है ना. सिंगल मार्क, सिंगल लाइन. डबल मार्क मतलब ये और ये डबल लाइन वाली इक्वल है. तो सेकंड इज XZ is equal to QR. XZ QR इक्वल है. थर्ड इज एंगल Z इक्वल टू एंगल Q, है ना. Z and Q they are equal. अब क्या होगा? इतना है तो we will take two triangles. किस कंडीशंस के लिए congruent हो जाएंगे? Triangle XYZ congruent. समझो कैसे लिखना है. सीधा नहीं लिखेंगे XYZ PQR, है ना. जो एंगल है उसके साथ एंगल मैच होना चाहिए. So what we will do? Triangle XYZ. Z is the angle. पहले एंगल पकड़ेंगे. Z की जगह होना चाहिए Q, है ना. तो ये जो Z है थर्ड अल्फाबेट, उसके नीचे मैं लिखता हूं Q. ठीक है. नाउ ये समझो, दिस टू YZ QP XZ QR, मतलब दोनों में जो Z है कॉमन, Z की जगह यहां क्या हुआ कॉमन Q, मतलब Z and Q both are equal. तो ये तो हमने लिख दिया है. अब रह क्या गया देखो, Y equal to P, मतलब जो Y है वहां लिखेंगे P and then X, तो X की जगह लिखेंगे R. तो ट्रायंगल बना XYZ congruent triangle RPQ. Name of the triangle is PQR, but congruency is this. ये करेक्ट हुई, है ना. समझ लेना परफेक्टली. ये चाहिए, अदरवाइज मिड टर्म में जो है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ऑल आर राइडर्स. यही करना है. इन क्वाड्री आल्सो वी विल मेक ट्रायंगल, वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट. ये पता चलना चाहिए. एक तरह हमने ऐसा लिखा. दूसरी डायरेक्ट टेक्निक कैसे करेंगे वो समझो. रास्ता ढूंढना है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फर्स्ट ट्रायंगल. तो फर्स्ट ट्रायंगल हम ये रास्ते से जाते हैं. सिंगल मार्क, यहां से गए डॉट डबल मार्क. तो ये रास्ते पे चलते हैं. पता चला रास्ता कौन सा है. ओरली खास सीख लेना, ये इंपॉर्टेंट है. सिंगल मार्क डॉट, डॉट मीन्स एंगल, डबल मार्क. ठीक है. सेकंड ट्रायंगल इज दिस. रास्ता हमें चुनना है सिंगल मार्क डॉट डबल मार्क. गॉट इट. तो रास्ता हम ये चुनेंगे, सिंगल मार्क डॉट डबल मार्क. ये हुआ हमारा रास्ता. अब ये रास्ते पे जो है वो नेम लिख दो. सो यहां पे नेम क्या बना? दिस इज
ZX, है ना? समझ रहे हो? ट्रायंगल कितना रब कर देता हूं मैं। ट्रायंगल YZX congruent, है ना? YZX सिंगल डॉट डबल, तो यहां बनेगा ट्रायंगल PQR, है ना? नेम यही है, देखो कैसे YZX PQR, वही YZX यहाँ पे हमने लिखा है XYR, तो YZX को हम XYR करते हैं, पूरा उल्टा सीक्वेंस। तो पीछे से गिनते हैं X, then Y and then Z, है ना? पहले X, Y, Z, तो यहाँ क्या होगा लास्ट, दैट इज R, Y की जगह है P and then Q। तो ट्रायंगल वही है, आप ये लिखो या ये लिखो, है ना? बट सीक्वेंस शुड बी करेक्ट, सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट हुआ। और एक दो एग्जांपल्स, हाँ, समझ रहे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल DEF, second triangle given is PQR, सिंगल मार्क यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल सिंगल मार्क, डबल मार्क। नाउ SS कंडीशन, तो एंगल तो दोनों के बीच में ही आएगा। एक काम करता हूँ, यहां से माइक ऑन करता हूँ, आपका पूछना पड़ेगा, एक मिनट। दूसरा जो एक माइक लगाया था वो मैंने बंद कर दिया, निकाल दिया। चलो, कौन है सामने? परी, माइक ऑन करो। चलो परी, फटाफट ऑन करना। हाँ, यस सर। जिसका नेम बोलूं फटाफट बताना, ताकि टाइम वेस्ट नहीं। परी, एंगल कौन सा आना चाहिए? डी। हाँ, डी बराबर है, बोलो फटाफट। एक मिनट। हाँ, बोलो। एंगल डी, एंगल पी। एंगल डी करेक्ट है। सिंगल मार्क डबल मार्क ये दो साइड के बीच में, सिंगल मार्क डबल मार्क ये दो साइड के बीच में कौन सा एंगल बना परी? एंगल क्यू। सिंगल वाली लाइन, डबल वाली लाइन, आधे लाइन की वजह से क्या एंगल बनी? सर एंगल आर। तो बची, है ना? ये खास देखो, मतलब ऐसे यूज करना है तो ये कितना दिया होगा, है ना? तो इससे हम डिसाइड करेंगे दिस इज SS। ओके, अब हम नेम से उनका, साइड के नेम से उसका नेम निकालेंगे, सीक्वेंस से डायरेक्ट भी निकालेंगे। देखो टेक्निक, फर्स्ट इज DE, सिंगल मार्क, तो यहाँ पे साइड का नेम है PR, डबल मार्क दैट इज DF इज इक्वल टू डबल मार्क इज QR, और तीसरा जो है D इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल P। ओके, नाउ वी वांट टू राइट नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो पहले तो ट्रायंगल DEF लिख देंगे पहले का, DEF। अब देखो, एंगल पहले पकड़ो, सिंगल अल्फाबेट, सो जहां पे D है, D की जगह क्या आएगा? P, तो पहला D लिखा तो D के बराबर नीचे लिख दिया P। गॉट इट? अब ये देख लो, DE PR, DF QR, हमें पता है कि D की जगह हमने P लिखा है, तो हम D निकाल देते हैं, यहां से P निकाल देते हैं, तो क्या रहेगा? E, E की जगह क्या आएगा अभी? R, सेकेंड इज R। सेम वे यहां पे थर्ड वन इज DF इज इक्वल टू QR, DE इक्वल टू PR, DF इक्वल टू QR। ओके, सो
डी की जगह एक मिनट कुछ गलत लिखा विधि कोई मिस्टेक છે એટલે હાથ ઉપર કર્યો यस सर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आर आएगा ना एंगल आर है डी की जगह आर लिखा है करेक्ट है सो डी की जगह आ गया आर गुड है ना दिस इज डी दिस इज आर तो डी और आर हो गया अब यहाँ पे बीई पी आर है ना पहले कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी का भी माइक ऑन नहीं होना चाहिए पाटिल किसका माइक ऑन हुआ था तूने देखा होगा भव्य पटेल सर है ना भव्या माइक ऑन करो हाँ निकल गया सर वो निकल गया खबर जाए तो पकड़ से हुए ये आएगा ना तो सभी राइडर हो जाएंगे वरना कुछ भी नहीं आएगा और ये रटने की चीज नहीं है मोर देन 65 राइडर्स है यहाँ पे 65 रिजल्ट थोड़ी रटेंगे टेक्निक से ही सबको पकड़ना है मैं आपको फंडास और टेक्निक ही दिखाऊंगा अगेन एंगल डी तो डी की जगह आर है अब यहाँ पे डी और आर कट कर दो डी और आर गया तो ई की जगह आ गया पी तो ई के नीचे लिख दिया पी अब दो की जरूरत है ट्रायंगल था पी क्यू आर उसमें पी और आर आ गया तो तीसरा रह गया क्यू तो रिलेशन क्या बना ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आरपीक्यू गॉट इट यहां से ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आरपीक्यू कैलकुलेशन से किया नाउ डायरेक्ट टेक्निक समझो रास्ता ढूंढो घूमने का रास्ता कॉन्सेप्ट इज सिंगल मार्क डॉट डबल मार्क तो सिंगल मार्क वाली साइड से डबल मार्क की ओर जाना है तो ये रहा हमारा रास्ता सेम वे यहाँ पे सिंगल मार्क से डबल मार्क जाना है ना कृष्णा माइक ऑन करो कृष्णा पटेल सिंगल मार्क टू डबल मार्क कौन सा रास्ता आएगा कहाँ एरो बनाओ सर पी से आर वेरी गुड पी से आर आर से क्यू वेरी गुड आर से क्यू फाइन तो बन गया नेम यहाँ पे नेम क्या बना ई डी एफ है ना ट्रायंगल ई डी एफ कॉन्ग्रुएंट यहां से पी से दिस पी आर क्यू ई डी एफ पी आर क्यू ये नेम बना अब ये ट्रायंगल और ये नेम एक ही है पहले जो हमने लिखा ना दिस इज डीईएफ अब डीईएफ का ही सीक्वेंस चेंज करते हैं देखो डीईएफ आई मेक ईडीएफ है ना तो ई डी ईडीएफ वन मोर थिंग यू कैन डू 1 2 3 नंबर दे दो 1 2 3 अब ईडीएफ मतलब 2 1 3 नंबर तो यहाँ पर भी 2 1 3 वो आंसर 2 1 3 दैट इज PRQ दिस EDF PRQ देखो हमने लिखा है EDF PRQ तो EDF PRQ सही है ये सेम DEF RPQ दिस इज आल्सो करेक्ट कुछ स्टूडेंट का ये आंसर आएगा कुछ का ये आएगा तो दोनों करेक्ट ही है ना बिकॉज सीक्वेंस के हिसाब से उनके नेम हम चेंज करते हैं एक काम करो ट्रायंगल बाद में देता हूं पहले लिखो फंडामेंटल्स एक दो पॉइंट लिखाता हूं आपको नेम चेंज कर लेता हूं
possible sequence of congruence. लिखो फंडामेंटल्स ही है, एक मैं रिलेशन लिखता हूं, हम 5-6 तरह से अलग अलग तरह से हम वो लिखेंगे. समझो, दिस इज गिवन ABC to EDF. अब हम ABC के ही नेम चेंज करेंगे और EDF में क्या क्या नेम आएंगे. तो फर्स्ट टाइम करो तो आप क्या नंबर लिख लेना बिलो इट, राइट नंबर. ओरिजिनल जो है उसमें नंबर 1 2 3 लिख, ठीक है. अब उसके रिलेटेड मैं ट्रायंगल का नेम लिखता हूं, आप यहां पे दूसरे ट्रायंगल का नेम लिखेंगे. दैट मींस इंस्टेड ऑफ ABC, if it is ACB congruent, this side you have to write, है ना, ACB मतलब 1 3 2, ACB है ना, 1 3 2, तो आएगा ट्रायंगल 1 पे E, this is FD. So this is your answer. पता चला श्रेय? लिखते रहना. हाँ, चलो सेम वे triangle CAB, CBA, BAC. फर्स्ट ट्रायंगल 6 नेम्स, अकॉर्डिंगली यहां पे 6 नेम लिखने हैं आपको. Triangle ABC 1 2 3 1 2 3. Now second is CAB. CAB मतलब 3 1 2. 3 1 2, that is FED. Same way third one, triangle CBA, पूरा उल्टा सीक्वेंस है ना? C, then B, then A. So we will write F, then B, then E. FDE. Next is BAC. BAC. BAC becomes BF. BCA. DFE. Check karo. These are the 6 answers. Right? One more. Triangle UPR, congruent triangle YXZ. Now I'll make conditions. लिखते हैं.
भूमि फर्स्ट एंड सेकंड आंसर बोलो। हाँ, आवाज नहीं आती। रोशनी, भूमि की आवाज आती है? नहीं है? नो सर। ओके, हाँ बोलो। गायब हो जाती। ओके, नो प्रॉब्लम। सी, नंबर लिखे बिना, जैसे साइकिल नहीं सीखते तो शुरू में आप कोई पकड़े तो ही मजा आए, बाद में तो हाथ छोड़ के चला सकते हैं। समझो, पहले नंबर के हिसाब से आप डायरेक्ट भी हो सकता है। लाइक QPR है, दिस इज QRP, तो Q then R then B, first third second, that is Y Z X. This one, next one, PRQ, X Z Y. Next is PQR, X Y Z. Then next is RPQ, पूरा उल्टा सीक्वेंस है, तो ZXY, and the last is RQP, ZYX। ये बना, ठीक है? चेक कर लो 6 कंडीशंस। कुछ सम्स देता हूं ऐसे, मैं तो एक ही दूंगा, बाकी के सब आप बनाएंगे। ये भी कैसे बनाएंगे? देखो, आपने 1-1 कंडीशन किया ना, 1-1 कॉन्ग्रुएंस। लाइक फर्स्ट अल्फाबेट पहले वही रखो Q, तो Q, बाकी दो को घुमाओ। PR है तो RP, फिर PP सेम ले लिया, देन RR सेम, बाकी के दो चेंज कर दिए। इस तरह है ना, एक ट्रायंगल के 6 नेम आपको करना है। राइट डाउन होमवर्क, नया कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, अब से तो करें। सो राइट डाउन होमवर्क, फंडामेंटल सीखे, लिख दो नहीं। ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ZXY। नंबर 2, ट्रायंगल DEF, congruent triangle LMN. Number 3, triangle PQR, congruent triangle ZXY. Number 4, triangle UVW, congruent triangle BAC. Number 5, triangle ZXY, congruent triangle LMN. फंडास ही है। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेम, ऐसे ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? होमवर्क किया है तो आज से भेजना भी पड़ेगा, व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दो, ठीक है ना? रात को 10 बजे सोने से पहले, और ये तो 10 मिनटों का चपड़ा बताई दे जो ने, है ना? પછી રમવા જો સોસાયટી વાંધો નહીં, હા આવજો, બાય બાય, જય હિન્દ। જય હિન્દ સર। આવજો, बाय सर, जय हिंद। હા બાય બાય, જય હિન્દ, જય હિન્દ।